Hello everyone. Today we are going to start our next chapter. This is related with infrastructure. Infrastructure, as we have already discussed about the meaning and the definition, that infrastructure refers to a supporting structure that supports an economy directly and indirectly to grow. So, what's about the infrastructure? In this very topic, in this very video, we will discuss three topics. First is meaning or definition, second is the components, and third is the significance of infrastructure. Let's start. What is the meaning of economic infrastructure? First, we will discuss about infrastructure. Infrastructure is a supporting structure that helps an economy to grow directly as well as indirectly. The supporting structure that supports an economy directly is known as economic infrastructure. Economic infrastructure refers to the facilities, activities, and services which support operation and development of other sectors of the economy. These facilities, activities, and services help in increasing the overall productivity of the economy. They also play an essential role in facilitating the smooth running of all the sectors of an economy. बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर एक लाइफलाइन होती है एक कंट्री की, जिस ऐसी लाइफलाइंस जिस पर एक इकॉनमी पूरी तरह से डिपेंड करती है. अब हम डिस्कस करेंगे the meaning and the definition. We are already discussing about the concept of meaning and definition. In addition, infrastructure are such basic requirements like railways, roads, which you have to learn the examples also, ships, airways, communication, etc. They also include energy, banking, science, technology, health, education, and other public utility concerns. Without the existence and presence of economic infrastructures, the growth and fast pace of the economy is impossible. Moreover, infrastructures of an economy are also termed as social and economic overheads. Means जिस पर एक कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपेंड करती है, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. बच्चे रेलवेज, रोड्स, शिप्स, airways, communication, etc. They also include energy, banking, science, technology, etc. ये टेक्नोलॉजी तक का आपका जो पॉइंट है ना, ये तो है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये तीन आपके कंपोनेंट बनते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन का टॉपिक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एजुकेशन का टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया. क्लियर बेटा? लेकिन हम इसको लर्न कर चुके हैं और सीबीएसई की गाइडलाइन आई है कि आपने इन चैप्टर्स को पढ़ना भी है, और इंटरनल असेसमेंट भी हम इसके टेस्ट भी आपसे लेंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट किया गया. अदरवाइज़ इसको आपको स्टडी करना है. एजुकेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और टेस्ट भी हमारे हो चुके हैं. अभी जो जो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा उसमें भी मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी. फिर आपका इंटरनल असेसमेंट का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ द social infrastructure and second is the physical or economic infrastructure. Social infrastructure includes all those activities or facilities that helps an economy indirectly to grow, जिसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट आता है. जैसे एजुकेशन, आप लोग अभी एजुकेशन ले रहे हो, अभी आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, मतलब इकॉनमी में आप लोग जो एजुकेट हो रहे हो अभी रिसेंटली कोई उसका कंसर्न नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन इम्पैक्ट आएगा इसमें. जितने ज़्यादा एजुकेटेड आप होते जाओगे, जितने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होते जाओगे, उतना ही एक इकॉनमी के प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी. सो इसमें हम एजुकेशन को, हेल्थ को, हाउसिंग या ट्रेनिंग को भी इसमें हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज as to meet the basic needs of a society. In simple words, social infrastructure refer
to those basic services such as education and training. It also includes health and sanitation. It also includes health and sanitation, drinking water, housing, sewerage, etc. Social infrastructure are also termed as social overheads. These social overheads indirectly support the economic system. They indirectly increase the productivity and the economy sees the impact after some time. Social infrastructure leads to growth in the लॉन्ग रन. अभी मैंने आपको एजुकेशन का एग्जांपल दिया. एजुकेशन में अभी सरकार बहुत खर्च कर रही है गवर्नमेंट को. आपको पता है कि जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें सारी फंडिंग गवर्नमेंट की होती है. फ्री एजुकेशन हो गया, कंपलसरी एजुकेशन हो गया, मिड डे मील हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. इन सब पे सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ता है. अगर हम डीयू के बारे में बात करें या पीयू के बारे में बात करें तो यहाँ पर बच्चों की फ़ीस बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल फ़ीस होती है. क्यों? इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से मिलती है. तो ये एजुकेशन पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आएगा. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज़ अबाउट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, also known as economic infrastructure. Physical infrastructure is those infrastructure which directly concern themselves with the needs of such production sectors as agriculture, industry, trade, etc. In simple words, physical infrastructure directly supports the economic production. They also directly support the process of production and distribution in the economy. A few such examples are, bache, you are to learn the examples. Keep in your mind, these are also known as economic infrastructure. A few such examples are energy, आपके सिलेबस में है, इसी चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, etc. Physical infrastructure, however, directly increase the productivity and the economy sees the impact immediately. They also lead to an immediate growth in the short run. क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कि इकॉनमी की ग्रोथ को, इसीलिए इसका जो अफेक्ट आता है वो शॉर्ट रन में दिखाई देना शुरू हो जाता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आज से 5-7 साल पहले दिल्ली पहुँचने में हमें बहुत टाइम लगता था. मतलब लगभग 5-6 घंटे हमें लगते थे और बहुत ज़्यादा थक जाते थे हम. इवन गाड़ी में भी 5-6 घंटे लगते थे. अब आप देखिए, जब से ये हाईवेज़ बने हैं, अब हम यहाँ से दिल्ली 2 या 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि आगे ट्रैफिक की वजह से हम डेस्टिनेशन तक लेट पहुँचते हैं, लेकिन हम दिल्ली की बाउंड्री 2 या 2.5 घंटे में कवर अप कर लेते हैं. ये इमीडिएट हमें इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है. अगर हम इरिगेशन के बारे में बात करें, कैनाल कंस्ट्रक्ट हुआ, पानी जल्दी अवेलेबल हो गया फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन इमीडिएट बढ़ जाएगी. इसी तरह से अगर हम बैंक्स के बारे में बात करें, जितने ज़्यादा बैंक्स अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगी और उतनी ही ज़्यादा जल्दी से एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ या ट्रेड जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. सो दोनों में फ़र्क क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, एट्सेट्रा, इसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट आता है, जबकि फिज़िकल या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्ट टर्म इमीडिएट इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Move to the next topic. This is about the significance of infrastructure और importance of infrastructure. बहुत हद तक तो हमें ये बात समझ आ गई है, क्योंकि जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए तो हमें पता लग गया कि एक इकॉनमी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलप नहीं हो सकती. लेट्स स्टार्ट द सिग्निफिकेंस और द इम्पॉर्टेंस. यस बेटा, हियर इज़ अ फ्लो चार्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू बेनिफिट ऑफ हाउस होल्ड्स. इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बैंक्स होंगे, एनर्जी होगा, पावर जनरेशन होगा, इंश्योरेंस होगी. इससे रिज़ल्ट क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, मींस ऑफ इरिगेशन है, इससे क्या होगा?
कि हाउस होल्ड तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बैंक्स हैं, हाउस होल्ड लोन्स भी ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ हाउस होल्ड। अगर बेनिफिट्स ऑफ हाउस होल्ड हो रहा है मतलब हाउस होल्ड की ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं, इससे क्या होगा? देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन वेलफेयर। देन एनलार्ज मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। अभी तो आप ऑनलाइन का भी देख रहे हो, मार्केट एनहांस हो गई है, बहुत दूर दूर तक सामान मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती रही हूँ, पिछले 3-4 साल से मेरा यही चल रहा है। और अभी रिसेंटली क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो मार्केट्स में जाना अवेलेबल नहीं था, मैंने अभी अपने घर के लिए कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स मंगवाए हैं, वो मुझे लाइव नर्सरी से मिले हैं। मैंने कुछ बांस मंगवाए हैं, वो बांस भी मुझे मिले। मीन्स कुल मिला के क्या है, हम लोग कभी भी सेलर के कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन सामान हमें मिल जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक फॉरेन साइड से एक हेयर शैम्पू भी मंगवाया था, वो मुझे अमेरिका से मैंने मंगवाया था। तो क्या हो रहा है? एनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट। देन बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइजेज। अगर हम एंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो सारी फैसिलिटीज़ उनको भी मिल रही है। क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है? उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स ज़्यादा हैं, इंश्योरेंस है उनके पास, पावर सप्लाई उनको पूरी मिल रही है, वाटर सप्लाई मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, रॉ मटेरियल जल्दी से आसानी से पहुंच जाता है, एजुकेशन की वजह से स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रेनिंग की वजह से पढ़े लिखे लोग हैं, वर्कफोर्स जो है वो टैलेंटेड है। रिजल्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मींस बेटर टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर पा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? लो कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। रिजल्ट क्या होगा? देयर विल enlargement और enhancement in market as well as growth process। तो एक ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट मिलेगा एंटरप्राइजेस को, लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ से इम्प्रूवमेंट, वेलफेयर बढ़ेगा, बेनिफिट्स ऑफ हाउस होल्ड बढ़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक विर्चुअस सर्कल है कि जितना अच्छा हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा उतना फास्ट हमारा ग्रोथ प्रोसेस होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू ग्रोथ बिकॉज इट फैसिलिटेट्स enterprises, it facilitates households, result is increase in welfare, increase in growth, growth की वजह से welfare भी हो रहा है इधर से, क्योंकि मार्केट बढ़ती जा रही है इधर से। अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एजुकेटेड पीपल आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल का बेनिफिट मिल रहा है एंटरप्राइजेस को, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है और क्या हो रहा है? ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से भी अपनी प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेचा जा सकता है। रिजल्ट क्या है? एनलार्ज इन एनहांसमेंट इन मार्केट। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ये वाला जो सीज़न चल रहा है वो आम के पिकल का सीज़न चल रहा है और मुझे अपने घर के लिए एक जार की ज़रूरत थी। मैं ग्लास जार ख़रीदना चाह रही थी। बेटा मैं मार्केट गई और मैंने यहाँ मार्केट से एक 4 kg कैपेसिटी का एक जार ख़रीदा जो मुझे 280 रुपीज़ का मिला। तो मुझे एक 2 kg कैपेसिटी का भी जार चाहिए था, तो मैंने यहाँ से पता किया, मुझे फतेहाबाद से नहीं मिला, तो मैं इसके लिए ऑनलाइन मार्केट में सर्च कर रही थी। कैन यू इमेजिन, मुझे 2 kg जार अवेलेबल भी हुआ और कैन यू इमेजिन इट्स प्राइस बचे इट कॉस्ट ओनली ₹25। मैं हैरान इस बात के लिए कि 4 kg का मैंने यहाँ से 280 का ख़रीदा और 2 kg कैपेसिटी का मुझे 25 रुपये में मिल रहा था, लेकिन मैं उसको अवेल नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मिनिमम ऑर्डर मुझे 1000 जार्स का देना था जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अगर होल सेलर मुझे 25 रुपये का देने को तैयार है, इसका मतलब उसको 10 या 12 रुपये में कहीं ना कहीं या 20 रुपये में उसको कहीं पर मिला था, और अगर फतेहाबाद में मुझे मिलता तो वो कम से कम 250 रुपीज़ का मिलता। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मार्केट जो है वो एनहांस हुई है। वो पता नहीं प्रोडक्ट कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस होते हैं, हाई प्राइस पर बेचे जाते हैं। कुल मिलाकर ग्रोथ प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ efficient means of infrastructure।
Now move to the next topic, significance of economic infrastructure. According to Dr. V.K.R.V. Rao, बच्चे ये बहुत important economist रहे हैं Indian economy के लिए. The link between infrastructure and development is not a once for all affair. It is a continuous process, and progress in development has to be preceded, accompanied, and followed by progress in infrastructure if we are to fulfill our declared objectives of a self accelerating process of economic development. In this definition, he defines the relationship between economic growth and infrastructure. Now, some points are there. We are going to discuss some points of significance. The smooth functioning of the economy. Infrastructural facilities are very necessary and vital for the smooth functioning of the economy. They are like wheels of development without which the economy will not be able to function properly. Bache, you can better imagine a life without roadways, railways, energy, power supply, वाटर सप्लाई, एजुकेशन सेंटर्स एक्सेट्रा. अभी आप देखिए लॉकडाउन में ज़िंदगी रुक गई है, हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन सोचिए अभी हमें घर में कम से कम फैसिलिटीज़ तो मिल रही है, हमें सब सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, वाटर सप्लाई हमारे पास आ रही है, सब कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं. क्यों? क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो सोचिए अगर हमारे पास पावर सप्लाई ना हो, वाटर ड्रिंकिंग वाटर ना हो, सैनिटेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, तो सोचिए हम इसको हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी. सो for the smooth functioning of economy, infrastructure is very very important. Now, development of agriculture. The development of agriculture to a considerable extent depends on the adequate expansion and development of irrigation, credit, transport, power, marketing, training and education. इरिगेशन फैसिलिटीज़ मीन्स कैनाल कंस्ट्रक्शन. हमने डिस्कस किया था कि इनिशियली मोस्ट ऑफ द कल्टिवेबल एरिया वॉज रेन फेड, रेन पर डिपेंड कर रहा था, और इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था दैट वाज क्वाइट वल्नरेबल, एट रिस्क. लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से क्या होता है, हमें टाइमली और प्रॉपर वाटर मिल जाता है जो हमारी फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्रेडिट फाइनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ट्रांसपोर्टेशन, जितना बेटर ट्रांसपोर्ट होगा उतना बेटर हम अपनी जो क्रॉप्स हैं, हार्वेस्ट है, उसको हम मार्केट तक पहुंचा पाएंगे. मार्केटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट किस पर डिपेंड कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. Industrial production requires not only machinery and equipments but also requires the following: energy, skilled manpower, management, banking, insurance and transportation services are quite crucial. मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया कि इंडस्ट्रीज भी किस पर डिपेंड करेंगी? मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. These activities and facilities will directly lead to the development of the industrial sector of the economy. Move to the next. This is promotion of investment. Infrastructural development is definitely a precondition got increasing economic investment. Those areas with the sound infrastructural base may succeed in attracting all the more capital for investment. बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. जो एरियाज डेवलप हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी सर्विसेज या इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर सप्लाई, मार्केटिंग, ये सब अच्छे से अवेलेबल है, वहीं पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. सोच कर देखिए कि रतिया में कोई इन्वेस्ट करे या मुंबई में इन्वेस्ट करे, दोनों में फ़र्क है, क्योंकि मुंबई में मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू रतिया. तो यहीं से हमें पता लगेगा कि प्रमोशन कहाँ होती है इन्वेस्टमेंट की? जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है. देन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर और पर यूनिट प्रोडक्शन. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. Development of science and technology is also important.
in improving the economic productivity. Moreover, research and development also play a critical role in economic improvement. In fact, development of the country wholly depends on the means of infrastructure. Then, employee generation or employment generation. Infrastructures play a crucial role in the generation of employment opportunities. They improve mobility क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंट हो रही है, इससे क्या होगा, लेबर जो है, लेबर मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी. बच्चे अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. अगर हम बात करें कि हमारे बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, मुंबई में है, बहुत सारे बैंगलोर में है. रीज़न क्या है? मोबिलिटी ऑफ लेबर. देन efficiency and productivity of labor. Moreover, larger investment, development of industry and agriculture create all the more employment opportunities. जितने ज़्यादा हमारे ट्रेड, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती जाएंगी. और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड फॉर लेबर कम है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है. देन सम ऑफ द सेकेंडरी बट एसेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बच्चे, यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. First, development of backward regions. The development of backward regions and the removal of regional imbalances is yet another significant contribution of infrastructural facilities. The lack of infrastructural facilities in the backward regions will act as a constraint on the development of those regions. अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ, बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज़ हैं जो डेवलप नहीं होते. वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है. हम पंजाब के साथ हमारा काफ़ी रिलेशन है, तो पंजाब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हैं. अभी कुछ टाइम पहले मैं जम्मू कश्मीर घूमने गई थी, तो वहाँ पर मुझे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नज़र आई. वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है. सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, वहाँ नेट नहीं चल रहा था. मेरे पास स्कूल से कुछ मेल्स आ रही थी, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू रीड ऑल दीज मेल्स. क्योंकि वहाँ पर नेट नहीं था. तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जो डेवलप हो ही नहीं रही हैं. तो ये एक बैकवर्डनेस है. लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ. कुछ हमने आते हुए जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जैसे हाईवेज़ वहाँ बनने शुरू हुए हैं, बट बहुत लंबा टाइम लगेगा वहाँ पर. मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इज़ पॉसिबल इफ़ means of infrastructure are developed in these particular areas. Now, social change. Infrastructure facilities will also act as an instrument of social changes. Development of industries, transport facilities, and education will change the outlook of people. Apart from these, even science, technology, and growth of towns and cities will lead to a changed economic outlook. Then, the growth of GDP. There exists a very close relationship between spending for infrastructure and GDP growth. Studies reveal that 1% of growth in the stock of infrastructure often associates with 1% growth in per capita GDP. मतलब जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही तेज़ी से GDP ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी. मीन्स दे आर directly related with each other. They are directly as well as proportionately related with each other. Now, all-round development, infrastructural development is important not only for the economic growth but also for the overall development. The all-round development of the country and economy is crucial. Infrastructure facilities are also necessary for technological innovation. Along with technological innovation, economic infrastructural facilities are also important for the eradicating poverty and enhancing globalization. पॉवर्टी कैसे इरेडिकेट होगी? ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा और पॉवर्टी इरेडिकेट होगी. एनहांसिंग ग्लोबलाइजेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हम उसको लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. अभी हम अपना चार्ट पढ़ कर आए थे. इससे क्या होगा,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अच्छे हैं, कम्युनिकेशन हमारा फास्ट है, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर हमारा डेवलप है, रिजल्ट क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में भी बेच पाएंगे. सो इससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन, देयर विल बी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉइंट्स हैं, इसको आप अपने क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट एंड ऑल द एलिमेंट्स विद इन. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स large scale production for the purpose of smooth functioning of the economy. They result in the territorial division of labor, which is great. They also ensure price stability in the market. बच्चे प्राइस स्टेबिलिटी कब आती है, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं. डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू शूट अप. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू शूट अप. लेकिन अगर डिमांड बढ़ रही है और करस्पॉन्डिंगली सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो देयर विल बी नो चेंज इन price, because there will be no mismatch between demand and supply. Now, economic infrastructure definitely ensures the mobility of labor and capital within from the economy. It results in the overall growth of towns and cities. Infrastructures provide for a lot of employment generation and employment opportunities. They also play a crucial role in national defense activities. डिफेंस एक्टिविटीज़, सिंपल सी बात है, अब आप चाइना बॉर्डर पर टेंशन देख रहे हो, तो वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था. आप देख रहे हो पूरी की पूरी ट्रेन लेबर क्लास की भेजी गई, वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है. तो दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन नेशनल डिफेंस एक्टिविटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द इकोनॉमी डायरेक्टली रिजल्ट इन द यूनिटी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक कंपोनेंट्स. सबको कोऑर्डिनेट करती है वो. द इकोनॉमी एंड द नेशन विल बी एबल टू मीट एनी इमरजेंसीज दैट अराइजेज. अभी आपने देखा असम में और बिहार में फ्लड आया हुआ है, बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लड आया हुआ है, दिल्ली में भी फ्लड के चांसेस बन रहे हैं. तो ऐसे समय में वहाँ पर फूड सप्लाई पहुँचाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराना, ये सब किस में आ जाएगा बच्चे, ये सब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो द इकोनॉमी एंड द नेशन विल बी एबल टू मीट एनी इमरजेंसी दैट अराइजेज. कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, हमारी हेल्थ सेक्टर से आ रहा है. हेल्थ सेक्टर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. देन इट क्रिएट्स अ प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी. Infrastructural development plays a vital role in the development of agriculture and industry. Infrastructure like transportation, communication, and telecommunication breaks any economic isolation that prevails in the country. Economic isolation का मतलब, जैसे अभी मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम बताया, असम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, तो वो एक तरह से वो स्टेट क्या है, आइसोलेट हो गया है. तो उस इकोनॉमिक आइसोलेशन को कौन ख़त्म करेगा, means of transportation. They are a great and rich source of revenue to the government. The development of economic infrastructure will directly result in the development of economic trade, and all these uh, all these lead to the growth of an economy. So I hope you are very much aware, you are very much able to understand what is infrastructure, what are its components, and why infrastructure is called lifeline of an economy, or you can say the growth of a country depends on efficient means of infrastructure. So this is all about today's topic. Now what's about your homework? Bache, do revise your chapter thoroughly and please send me your doubts if you have any. So stay home, stay safe. Have a wonderful day. Be prepared for the test. Your test will be on Thursday and it will contain all the chapters. Chapter number 7, 8, 9, 10. 11th chapter nahi aayega. So enjoy your day. Do your work properly. Goodbye, dear students.